Yes, sir. Okay, thank you. So today we are starting with some designing concept of iOS. We will learn about auto layout today. Let's wait to connect to my device first. Let me present my screen. So once it's open and run, then I will show you that what kind of design we are going to create for the first design, and there will be again a second design probably that we will not cover today, but first design we will cover today, and we will learn that how we can make the design to uniform for the all type of screen, because as we know that we have a different size of iPhone. So that's why we need to make sure that it will work in all the device, in all size of device. First, I will tell you the design, what we want, and then you need to tell me what we can do. And I will tell you the reason also why we are doing that. But I will ask you first that how we can approach or how you want to be approached like that. And जहाँ पे भी changes होंगे, जहाँ पे भी I have some suggestion, I will give it. And I will also introduce the concept that is auto layout. Now let's just wait for a half 30-second more to load our application. And whichever design I have made, that design is basically for the landscape mode. So I need to rotate once it is open. Can you start the recording? Yeah, I'm just once I start, then I will start recording. Okay, meanwhile, let's start the recording. It is yet not loaded. That's why it is just showing the splash screen, which is white right now. So it's loaded. Let's rotate it by using the shortcut, this command left arrow. Okay, it's work fine. Okay, let's stop it now. Okay, let me go to my design and let me show you that what design we need to make.
So this is what the design we need to make. As you can see here on the right hand side, I have a picture. Don't worry about the picture. So I have downloaded it and I have already used that picture. So this is what the picture available in the background. Okay, then I have a something called black color का जो दिख रहा है आपको, that is nothing but it's a container. Okay, in that container there is two label. The one label is saying Nadiad and another is Nadiad is beautiful city. Okay, some description. So I have taken two label here. There is a one image view here. ये image view है. This is view. ठीक है, एक व्यू है जो हम कह सकते हैं वो कंटेनर है. इन कंटेनर वी हैव अ टू लेबल एंड इसका कलर है मैंने थोड़ा सा ब्लैक रखा है एंड ब्लैक से थोड़ा सा उसके जो ऑपेसिटी है दैट आई हैव चेंज इट. दैट्स इट. So this is what I have done and this is what you need to do. You need to suggest me what I have to do first. I'm showing you the screen right now and let me close this project and we will start with the scratch. Let me close this project. Let's click on the export to create a new project. Let's create a new export project. Single view application, click on next. And I'm giving here the title as a design one, try one, 2021, 2022. And the language is Swift and user interface is storyboard. No need to check any of the other checkbox. We are not using that. So you make sure you are giving this name of your application, then the language is Swift and user interface is a storyboard. Next, click on the next. Select the location where you want to save your project or your application. I have a folder already available in a desktop, so I'm going into desktop and folder that is JB iOS. Let's create a project inside that. Let's wait to load properly. Let's go to and first tell me that where we can design. कौन सी फाइल में हम लोग डिजाइन करेंगे वो बताओ पहले. In which file we will design. App delegate, scene delegate, view controller, main.storyboard, asset, launch screen.storyboard and plist. कौन सी फाइल में डिजाइन करेंगे हम लोग. Anyone? If you are speaking, I'm not able to hear you. In case you are speaking and if it is not audible, you can just write in a comment section. My question is which file we have to open to design our view controller. अगर हमें ये डिजाइन बनानी है तो वो डिजाइन कौन सी फाइल में बनाएंगे. That is the question. Yes, anyone? Just guess it. It's fine. If it is, if you don't remember, just fine. Just tell me some name. Sir, view controller. View controller. Any other guess? Okay. So first of all, let me tell you that there are some files. Let me again give you description. That is app delegate and scene delegate. That is for
view controller life cycle. Okay, there are some methods are available. जैसे हम लोग हमारे एंड्रॉइड में हम लोग एक्टिविटी लाइफ साइकिल देखते थे, यहाँ पे व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल. To manage the life cycle of view controller, we have a two file. We can manage it by this two file, that is app delegate and scene delegate. The next is view controller, that is not your front end file, that is your back end file. Okay, let me open it so that you can see what is the code available. So this is what your coding file, or you can say your and agar Android se compare karo to then this is your main activity.java file, and the design file is main.storyboard. This is the file where we need to design our view controller. Okay, and asset folder किसके लिए होता है, कोई बताएगा, किसी को याद है फटाफट? सर वो कलर एसेट स्टाइल उसके लिए yeah, that's the correct answer. The asset folder is for the image. If you want to include some image in your application, first you need to drag and drop that image inside this folder, which is asset folder. Okay, and what about this launch screen.storyboard? वो किस लिए यूज होता है? Any splash guess? screen sort of. That's a correct answer. For splash screen we are using launch screen.storyboard. तो यहाँ पे जो भी आपको डिजाइन रखनी है, for example, if you are creating your own application, you just put your photo or your icon, whatever you want. So whenever your application will be launched, so first it will show the splash screen. So whatever the symbol you have put here, that will be displayed, and then your main.storyboard will be displayed. Okay, so we are not going for the splash screen for right now. So what I want this UI. So first of all, what I have to add, कोई बताएगा मुझे? I have already told you that which are the controls I have used for designing. So क्या करेंगे? Yes, anyone? Because if I do it, then वो आपको पता नहीं चलेगा. आप खुद ही बताओगे, then it will be very useful for you कि हाँ ऐसा कुछ है, ये गलत है तो क्यों गलत है. Yes, anyone? This is your image view, this is your view, and this are the two label. तो सबसे पहले क्या करेंगे? इमेज व्यू करेंगे. इमेज व्यू लाएंगे, कैसे लाएंगे कोई बताएगा मुझे? इमेज व्यू कहाँ से आएगा, कहाँ कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा, या फिर कहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा? एनी आइडिया? Okay, so once you are in a main.storyboard, if you want some control to drag and drop in the main.storyboard, there is one plus button here. अगर आपको नहीं दिख रहा ये, let me go to here and let me use cursor highlighter. So here you can see your plus icon. So that plus icon you can use, and that is nothing but it's an object library. Okay, so once you click it, and it will show you this window where you need to search your control, whichever you want to put or whichever you want to drag. Okay, so first I need is what? Image view. So let's include the image view here. Let's drag and drop here. Done. Image view drag and drop कर लिया. Now we also need some image. Image कहाँ पे put करेंगे, कहाँ पे store करेंगे? If I want to put some image, where I will put the image, in which folder, in which file? Yes, anyone? अभी जस्ट बताया मैंने. In assets folder.
Yeah, that's correct. It's Yeah, asset folder. So I'm going into asset folder. So this is how it look initially whenever there is a no image. So what you can do, I'm just opening my Finder. So in a Finder, in a download, I have a one image. So I'm just drag and drop that image into directly here. So whichever the image you want, you just drag and drop here in a asset folder, and it will be placed according to its size. Okay, now what I want, I just want to change its name. So I'm just double clicking on it, and I'm just giving that img as a name for that image. मतलब उस image का नाम दिया है, that is img. ठीक है? So we have an image now. Now let's go to the main.storyboard. Now what I want कि ये जो इमेज व्यू है, वहां पे मुझे इमेज सेट करनी होगी. कैसे करेंगे? So if you just click here in a view, image view, and if you see this property, that is inspector, अगर inspector panel में अगर आप देखोगे तो then you will find the attribute inspector panel, or we can see the properties here. तो यहाँ पे एक property है, attribute है, that is image. Once you press and click on this arrow, you will find all the image which you have put in the asset folder and other image as well, if it is available, like system image. So let's click it, and let's click outside so that it will be reflected. So now it is reflected. Now let me close this Finder because now I don't need it. Okay, now what I have to do, because it's the same image, अब क्या करेंगे, इसको बड़ा सा कर देंगे. ठीक है, कर देते हैं. Let's click here. Let's make it little bit bigger. Okay, anybody knows about safe area and view? Just tell me. Meanwhile, just I'm adjusting this thing. Yes. Anyone know about safe area and view? किसी को पता है क्या safe area क्या होता है और view क्या होता है? Anybody? Yes or no? अगर नहीं है तो it's fine, no issue. Okay, so let's go to view, and यहाँ पे देख सकते हो आप, there is a view hierarchy. So view hierarchy में अगर आप देखते हो, then first you will find view controller. View controller मतलब kind of activity. यहाँ पे activity नहीं है, Java में activity होती है, और यहाँ पे हम उसको कहेंगे view controller. So in a view controller, we have a view. ठीक है, तो मैं आपको hierarchy दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है और क्या क्या है. ठीक है, so let me show you this. तो सपोज करते हैं कि ये आपका व्यू कंट्रोलर है. ठीक है, ये व्यू कंट्रोलर है. ठीक है, एंड व्यू कंट्रोलर मतलब आपकी एक्टिविटी. व्यू कंट्रोलर इट इक्वल टू एक्टिविटी इन एंड्रॉयड, मतलब आपका एक स्क्रीन या जिसको आप डिजाइन कर सकते हो. द सेकेंड थिंग इज व्यू. तो व्यू क्या है? एक कंटेनर है. इट्स नथिंग बट इट्स अ कंटेनर जिसके अंदर आप कोई भी कंट्रोल प्लेस कर सकते हो. सो ये जो व्यू है वो कहाँ तक है वो बता रहा हूँ आपको. ठीक है, ये जो आपका जो एक्टिविटी है, मतलब व्यू कंट्रोलर है, उसको पूरा का पूरा यहाँ पे वो कवर करता है. प्रॉपरली से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, बट यू कैन से ये कि पूरा सोच लो कि ये जो है वो यहाँ तक पूरा है. लेट मी ड्रॉ इट अगेन.
Let's write fine. Let me remove that. Consider this is your activity or view controller, and this one is your view. Okay, this one is your view. मतलब आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा कवर हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लग रही है ना, इट्स नॉट देयर इज अ नो स्पेस। तो ऐसा समझ सकते हो कि बाहर की साइड क्या है, ये आपका व्यू कंट्रोलर है, उसको हम स्मॉल मतलब शॉर्ट में कहेंगे वीसी। ओके, व्यू कंट्रोलर। एंड उसके ऊपर ही देयर इज वन व्यू, वो क्या है, एक कंटेनर है। एंड देयर इज अ सेफ एरिया आल्सो। सेफ एरिया मतलब कहां तक होगा पता है, मैं बता देता हूं कि यहाँ पे से थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी जाती है, दैट इज फॉर स्टेटस बार, जैसा जहां पे आपका टाइम वो सब कुछ दिखता है। तो ऑन द एवरी साइड, मतलब थोड़ा सा इस साइड यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस छोड़ दी जाएगी, यहाँ से भी थोड़ी स्पेस छोड़ दी जाएगी, मतलब हर जगह से थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी जाएगी। एंड ये होगा आपका सेफ एरिया, ये होगा आपका सेफ एरिया। ओके, इन सो सेफ एरिया ये है आपका व्यू है, ये आपका व्यू कंट्रोलर है। सो दिस इज व्हाट द हायरार्की अवेलेबल। सो व्यू कंट्रोलर है, उसके ऊपर ही एग्जैक्टली ऊपर ही वहां पे व्यू है, वो कंटेनर है। एंड इनसाइड व्यू वी हैव अ सेफ एरिया, और यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस है वो छोड़ी है इन अ सेफ एरिया। एंड लेट मी शो यू with the practical, and let me show you that how it is actually view is looking। and I have selected view here and you can see it's highlighted। ये पूरा का पूरा क्या है, एक व्यू है पूरा। एंड लेट मी शो यू द सेफ एरिया, तो आपको आइडिया आ जाएगा सेफ एरिया कहाँ तक है। यू कैन सी हाईलाइटेड पार्ट, यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट देखोगे तो ये जो एरिया है एंड ये जो एरिया है, ये पूरा, दैट इज कॉल्ड योर सेफ एरिया। ठीक है। एंड ये जो मैंने बताया था आपको व्यू, तो उसको कई बार सुपर व्यू कहलाता है वो। ठीक है, वाइल सम प्रॉपर्टीज के अंदर उसको हम लोग सुपर व्यू कहते हैं। ठीक है, ये जो है उसको व्यू भी मतलब कहते हैं, और या फिर उसको सुपर व्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर वाला व्यू है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सुपर व्यू समटाइम। ओके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अंदर एक और आप व्यू ऐड कर सो, एंड उसके अंदर आप जैसे कि यहाँ पे किया है, एक और व्यू यहाँ पे ऐड किया है, एंड उसके अंदर दो लेबल है, तो दिस कॉल बी व्यू। एंड जो बाहर वाला हुआ है उसको हम कहेंगे सुपर व्यू। तो दैट इज अ डिफरेंस, है तो दोनों ही एक। ठीक है, बट वो है वो सुपर व्यू है ये वाला। एंड सेफ एरिया इज दिस हाईलाइटेड पार्ट अप टू दिस। एंड नाउ वी हैव इमेज एज वेल। ठीक है, तो व्यू है, तो व्यू के अंदर हमारे पास सेफ एरिया है, एंड वी हैव इमेज आल्सो। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैंने पूरा स्ट्रेच कर दिया है बट स्टिल इट इज शोइंग इन दिस पार्ट ओनली। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, वी नीड टू स्ट्रेच इट अप टू व्हाट, द होल स्क्रीन। क्या करेंगे उसके लिए, फटाफट से बताओ फटाफट। एंड्रॉइड में ऐसे भी होता था, राइट। सो देयर आर सम मोड्स व्हिच वी नीड टू यूज। ठीक है, and that mode is called content mode। so once you click on the image, on the right hand side in the property you will find content mode, and once you click on it you can find different option, that is scale to fit, aspect fill, redraw, center, top, bottom, left, ये सब कुछ different properties आपको दी है। तो आपको चेक करना, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन, इट इज सेइंग स्केल टू फिट। एंड व्हेन आई से स्केल टू फिट, तो उसमें क्या हो रहा है, जो भी आपकी इमेज है वो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुकी है, एंड इट इज नॉट लुकिंग प्रॉपर, अच्छी तरह से नहीं दिख रही है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्राई समथिंग एल्स। अगर एस्पेक्ट फिट करेंगे तो जो पहले था वैसा का वैसा ही हो जाएगा। यू कैन सी
This is how the aspect fit will look. Now let's select the image view again, and now let's select this aspect field. So we need to choose this one, that is aspect field. तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे डिजाइन में पूरा का पूरा कवर हो चुका है. Now let's run it. Let's run this and check whether it's looking proper or not. So let's see in a simulator whether it's working fine or not. Let's check it. So it's looking fine for me for now, and let's try to rotate it by using command and left or command and right. And once I rotate it, you can see here there is a problem. The problem is that कि हमारा जो इमेज है वो एक्चुअली होना चाहिए कि पूरे में आना चाहिए था. भले ही मैं रोटेट कर दूं या फिर दूसरी स्क्रीन साइज यूज करूं, तो सभी में क्या होना चाहिए, वो सेम ही, मतलब पूरा का पूरा कवर होना चाहिए. And that's why there is a concept of auto layout. Okay, we need to give the constraint. Okay, so let me make it portrait. Again, for portrait it's fine, but when I make it rotate, or when I show you the landscape mode, then it is not looking proper. So that's why we need to make sure that it look proper in all the size of devices, and also in a when you rotate it. So what we can do, we need to go here in the down here, and once I hover over it, it is saying add new constraint. So once I click on add new constraint, we need to give the constraint. Okay, so we need to give the constraint here. So what I'm giving the constraint, or basically we need to give here some margin. Okay, so let me select and let me click on this button. तो ये जो ऊपर वाला वो आपको दिखा रहा है कि with respect to what it is giving the zero margin दे रहे हैं, तो मतलब अगर आप थोड़ा सा margin दोगे यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. It's like that. You are giving some more margin here. But right now I have selected 0, 0, 0 and 0. So 0 for top, मतलब टॉप से वो 0 मार्जिन होना चाहिए. विथ रिस्पेक्ट टू व्यू, विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट को यहाँ पे कहेंगे लीडिंग, एंड राइट को हम कहेंगे ट्रेलिंग, एंड बॉटम को हम लोग कहेंगे बॉटम. So let me click here. So once I click here, you can see here there is some lines you can see, that is red line. Let's wait because it's not working. Yeah, so now you can see the all part is highlighted. So that means we are giving the constraint for this image view, because ये image view को select करके बाद में मैंने ये constraint दे रहा हूँ. So you can see here there is I have selected all the constraints, so that's why it is asking us that add 4 constraint. तो यहाँ पे 4 constraint add किए, वो क्या है वो देख लेते हैं. Once I select it, यहाँ पे combo box में select करो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये with respect to what, with respect to view, it is giving 0 margin. Then this one is with respect to safe area. देखो यहाँ पे क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू सेफ एरिया है, बट क्या हमें सेफ एरिया के विथ रिस्पेक्ट में देना है या व्यू के रिस्पेक्ट में? देन आंसर इज व्यू के. क्यों? क्योंकि अगर सेफ एरिया के हिसाब से जाओगे तो लेफ्ट साइड में थोड़ी सी स्पेस छूट जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इमेज आई वांट इन अ बैकग्राउंड फॉर द फुल स्क्रीन, नॉट इवन कुछ भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए. So that's why I'm selecting this view, and view में यहाँ पे मैंने 0 दे दिया है. Now let's see for the right one also, that is called trailing one. Let's click on this arrow and let's see. This is with respect to what? Again, it is with respect to safe area. Let me change it to view. View में change कर दे रहा हूँ, and margin I want 0 only because I don't want any space. And this is also with respect to view only.
And now let's add this 4 constraint. Let's click on this button. तो जैसे ही मैं कंस्ट्रेंट ऐड करूंगा यू विल फाइंड हियर द ऑल द कंस्ट्रेंट। अभी तक ये नहीं था बट अब नाउ यू कैन सी हियर दिस ऑल कंस्ट्रेंट आर अवेलेबल। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रेंट कि जो हमने दिया है क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, जो हमने दिया है क्या वही कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगे हैं या फिर देयर इज अ सम चेंज। सम टाइम व्हाट हैपन कि जब हम लोग कंस्ट्रेंट देते हैं बट जब एक्चुअली कंस्ट्रेंट लगते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है कई बार बिकॉज ऑफ द वर्जन इशू। अगर वो लेटेस्ट वर्जन है और सही जो स्टेबल वर्जन है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट सम टाइम इट इज देयर इज सम प्रॉब्लम, so you need to double check it. तो फर्स्ट इट इज सेइंग ट्रेलिंग इक्वल टू इमेज ट्रेलिंग। तो इसका क्या मतलब है? तो पहले से मैं आपको दिखा देता हूं कि करना क्या है हमें और हम लोग ने किया क्या है। सो सपोज दिस इज माय व्यू जो पूरी स्क्रीन में है, ठीक है, और सपोज करते हैं कि ये आपका इमेज है, ठीक है, ये आपका इमेज है। अब हमें करना क्या है कि ये जो उसका जो ये इमेज का जो टॉप है, ठीक है, टॉप को हम लोग टॉप कहते हैं, लेफ्ट को हम कहेंगे लीडिंग, राइट को हम कहेंगे ट्रेलिंग एंड बॉटम को हम कहेंगे बॉटम। ओके, सो इमेज का जो टॉप है एंड जो व्यू का जो टॉप है वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका टॉप और इसका टॉप सेम है तो मतलब ये इमेज पूरा यहाँ पे आ जाएगा। इफ आई से दैट ये जो इमेज है उसका जो लीडिंग, इमेज का लीडिंग है एंड ये जो व्यू है उसको सम टाइम हम लोग कहते हैं सुपर व्यू और या फिर आप व्यू कह सकते हो, सुपर व्यू और व्यू। ठीक है, तो ये इमेज का जो लीडिंग है एंड जो सुपर व्यू का जो लीडिंग है वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अगर वो टॉप इक्वल है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर वो जो लीडिंग इक्वल है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो कहीं पे यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, ऐसा कहीं पे, अगर हम लोग सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट देते हैं तो। नाउ व्हाट आई वांट कि ये जो इमेज है वो पूरे में स्ट्रेच हो जाए, तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड है मतलब कि ट्रेलिंग। सो इमेज का जो ट्रेलिंग है एंड जो व्यू का जो ट्रेलिंग है वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए, एंड जो इमेज का जो बॉटम है एंड ये जो बॉटम है व्यू का जो बॉटम है वो भी इक्वल होना चाहिए। देन वी कैन से दैट ये जो इमेज एंड जो ये व्यू है वो मतलब जो इमेज है वो पूरे व्यू के अंदर आ जाएगा। एंड अगर ये कंस्ट्रेंट हमने दे दिए तो इवन इट इज रोटेटेड और उसकी साइज चेंज है, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस इज डायनेमिक कंस्ट्रेंट। व्हाई इट इज डायनेमिक? बिकॉज व्यू सभी में होता है, अगर वो रोटेट होता है या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड वी हैव गिवन द कंस्ट्रेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? द व्यू। एंड व्यू इज अवेलेबल इन ऑल द डिवाइस, ऑल द साइज, सभी में ये कंटेनर अवेलेबल होता है, वो पूरी स्क्रीन में होता है। एंड वी हैव गिवन द कंस्ट्रेंट विच इज डायनामिक। स्टेटिक नहीं दिया है हमने, कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है कि इसका इतना साइज होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, नो, वी आर नॉट गिविंग दैट। व्हाट वी हैव गिवन? वी हैव गिवन सम डायनामिक कंस्ट्रेंट। तो ये इमेज का टॉप है, ये उसका लीडिंग है, ये उसका ट्रेलिंग है, और इसका जो बॉटम है वो ही इक्वल टू कर दिया है सुपर व्यू के साथ। and that is what we need to check here. Check here the constraint and tell me whether it is proper or not. So here you can see the constraint. So trailing सिर्फ लिखा तो उसका मतलब ये view dot trailing है। Okay, if nothing is mentioned then you can consider that it is view dot trailing. So view dot trailing equal to image dot trailing. Yeah, that's fine. Trailing का क्या मतलब है? If I am selecting this, you can see it is also highlighting. Trailing means right hand side वाला part. तो इमेज का जो ट्रेलिंग है सुपर व्यू का ट्रेलिंग है वो इक्वल है, दैट्स फाइन। नाउ लेट्स गो टू इन अ टॉप एंड यू कैन सी इमेज टॉप इक्वल टू टॉप, दैट मींस ये ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, हमने सिर्फ वहां पे लेफ्ट राइट वो सब दिया था, दैट्स इट। एंड देन वी हैव एडेड द कंस्ट्रेंट इज एडेड ऑटोमेटिकली। वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रेंट कि कौन से कंस्ट्रेंट है, क्या वो सही है या नहीं है, दैट्स इट। Now the image leading मतलब left hand side वाला part.
सो इमेज का जो लीडिंग है एंड जो सुपर व्यू का लीडिंग है दोनों इक्वल है, दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड द लास्ट वन इज बॉटम। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू सेफ एरिया कुछ भी नहीं लिखा, सो दैट्स व्हाई इट इज फाइन। एंड नाउ इफ यू सी बॉटम इक्वल्स टू इमेज डॉट बॉटम, सो वो भी तो ये सही है क्योंकि ये सुपर व्यू डॉट बॉटम है इक्वल टू इमेज बॉटम, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। So now as everything is perfect, now let's run it and let's check whether it's working fine or not. Even if we rotate or even we try to use different size of phones. So for portrait वो तो पहले भी सही दिखा रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती थी जब हम लोग उसको रोटेट करते हैं। लेट्स रोटेट इट नाउ। And once I rotate it, see, it's looking fine. And there is no space, मतलब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है, मतलब वाइट नहीं दिख रहा है। ऐसा ये जो इमेज है वो पूरे के अंदर आ गया है। बट इफ यू वांट सम वाइट स्पेस, मतलब यहाँ पे नहीं चाहिए, तो देन यू कैन गिव द कंस्ट्रेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेफ एरिया। ठीक है, व्यू के विथ रिस्पेक्ट में नहीं देना है, क्या करना है सेफ एरिया के अकॉर्डिंगली दे दो, देन इट इज फाइन। Now let's get back to the portrait again and let's stop it here. And if you want you can also check with the different device also. कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे बॉटम साइड में आपको दिखेगा, just click here, that is view as a iPhone 11. So right now it is iPhone 11. If you want to design something in a landscape mode, you just click here and it will show you the portrait mode. So it's also fine, it's working fine. And you can also change the device. Right now it is iPhone 11. You can also change it to iPhone 8 and check whether it's look fine or not, and you can see it's look fine. Even I can change it to lower size, that is for iPhone 4S. Let's try it and see, it's still fine. And let's make it portrait and still just looking fine. And iPhone 8 के अंदर portrait में देख लेते हैं, this is also look fine. Okay, so let's get back to our, that is iPhone 11. Okay, so this is what we have done till now. It's working fine. But हमारी जो डिजाइन है अभी भी उसमें कुछ बाकी है। Let's add that thing first. अगर वो ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया आएगा आपको कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, and let me go to my design. Okay, so this is what my design look जैसे मुझे बनानी है, और यहाँ पे ये इमेज तो आ चुकी है, and also we have provided the constraint. Now what about this view? ऐसा व्यू लाना है कि अगर मैं उसको अगर आप चाहो तो मैं उसको पोर्ट्रेट करके भी दिखा सकता हूँ। Even I portrait it, ओके, और सॉरी लैंडस्केप में अगर मैं उसको चेंज करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो भी अगर देखोगे तो ये जो स्क्रीन की जो पूरी साइज है उसमें से ये जो व्यू दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो कुछ पार्ट में ही है। तो इवन आई रोटेट इट, ऐसा नहीं है कि वो पूरे में आ रहा है या आधे में आ रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज टेकिंग सम परसेंटेज like 30% of the whole screen. Even I make it portrait by rotating it, you can see from the 100% screen it is taking up to 30% of screen and it is displaying that view here. So if you want that, let's try that. Label बाद में add करेंगे because I know we don't have a time to do that. Okay, so let me add this view here by clicking on this plus button, that is object library. And now let's add the view.
ठीक है, सिर्फ आपको टाइप करना है व्यू, एंड इफ यू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन एंड यू कैन फाइंड हियर व्यू। तो आपको करना क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ये व्यू को, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने। अब क्या करना है, ये जो कलर है उसका वाइट दिख रहा है, वो कलर आपको चेंज करना होगा। सो हाउ यू कैन चेंज द कलर, वो व्यू को सिलेक्ट करो तो वो व्यू कुछ ऐसा दिखता है। इट्स जस्ट अ कंटेनर, दैट्स इट। इसके अंदर आप कंट्रोल पेस्ट कर सकते हो। सो वी विल पेस्ट टू लेबल लेटर ऑन once we will fix this view in a proper place. So what I want to change the background color. तो मैं बैकग्राउंड ये कलर पे क्लिक कर रहा हूं एंड नाउ लेट मी मेक इट ब्लैक कलर। पर जब मैं ब्लैक कलर दिख रहा हूं कर रहा हूं, बट यहाँ पे जो है उसकी तो ओपेसिटी है वो थोड़ा सा अलग है। ओके, लेट मी थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं एंड देन वी विल गिव द कंस्ट्रेंट। ओके, सो आई थिंक मतलब प्रॉपरली नहीं है, वो हम प्रॉपर कर देंगे कि एग्जैक्टली 30% कैसे हो वो सब हम लोग कर लेंगे। बट फॉर नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज its opacity. So how we can change it, we need to go into background again and we can choose the custom. यहाँ पे कस्टम में जाओगे आप, जैसे ही कस्टम में जाओगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। यू कैन सी हियर द विंडो एंड यू कैन चूज द कलर, जो भी आपको कस्टम कलर चेक करना है। कलर वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, दैट इज ब्लैक, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट choosing the color for now. So what I want just want to change the opacity, and once I change it you can see the changes here. तो थोड़ा सा और उसको कर देता हूँ। Let's make a 69 68 as a opacity value for that color, and let's close this one, and now it's look fine. But now still we need to add what, the constraint. अगर मैं constraint नहीं add करूंगा then you can see the problem. Let me run it and let me show you the problem what will happen. वो प्लेस आपने कर दिया है तो वो प्रॉपर्ली दिखेगा भी सही अगर आप पोर्ट्रेट मोड में करोगे, ठीक है, वो सही से दिख रहा है, फाइन। बट इफ आई रोटेट इट, अगर मैं रोटेट करता हूं तो वो पूरा का पूरा आपका जो व्यू था वो ही चला गया। क्यों? क्योंकि व्यू के लिए आपने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया था कि वो एग्जैक्टली कहां पे प्लेस होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट इज गॉन, वो दिख ही नहीं रहा है भले ही हमने ऐड कर दिया है। अगर आप वापस से पोर्ट्रेट मोड में मूव होते हो देन इट इज वर्किंग, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गिव सम कंस्ट्रेंट टू दिस व्यू। कैसे करेंगे? अगेन वी नीड टू गो हियर इन अ बॉटम साइड। ओके, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड बॉटम एंड राइट। अगर आप चाहो तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन सा कंस्ट्रेंट देंगे तो जिससे ये ऐसा ही दिखना चाहिए, या फिर यू कैन गिव सम ट्रिक और पहले ऐसा करेंगे उसके बाद ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई आइडिया? ओके, सो व्हाट आई वांट कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाए, राइट हैंड साइड है वो जो व्यू है उसके अकॉर्डिंगली आ जाए, एंड जो बॉटम है वो भी तो व्यू है उसके अकॉर्डिंगली आ जाए। आई डोंट वांट एनी स्पेस। सो राइट नाउ आई एम गिविंग 3 कंस्ट्रेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्यू। So let's select this and check it is with respect to view or not. Right now it is giving 0 because I have already set to up to here, and it is showing with respect to view safe area. तो उसको मैं change कर देता हूँ and let's make it view for now. Once you select it, just wait to reflect. Okay, it is reflected. Now let's give tab here. यहाँ पे tab दे देंगे
and let's click here on this arrow. अगर वो सेफ एरिया के विथ रिस्पेक्ट में है तो उसको चेंज करके हम लोग व्यू के विथ रिस्पेक्ट में कर देंगे। अगर सेफ एरिया करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होगा कि थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। Let's click here again and let's wait to open that window, and it is with respect to safe area. We need to change it to view. Let's select view now. So once I select view, I just want to make it 0 only. So 0 available है तो no need to change anything. अगर change करना है then you can change it. And ये तो view के respect में ही है. So let's click here so to add this constraint as well. So यहाँ पे वो पूरा का पूरा red दिखना चाहिए. In case it is not visible, then you just click here. And now you can see we have added 3 constraints, and that is with respect to view only. Let's add this constraint now. And once I added the constraint, अगर आपको चेक करना है कि कौन से constraint ऐड किए, then this we have added with respect to view. तो view में आप जाओ, and यहाँ पे अगर आप inspector panel में जाओगे, then you will find the constraint. So we have added this constraint that is saying trailing space. ये trailing space वाला है एक, और you can also see here, ठीक है। ये जो 4 ऊपर वाले हैं वो इमेज व्यू के विथ रिस्पेक्ट में है, क्योंकि आप देख पा रहे हो IMG, IMG, IMG एंड IMG, एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू व्यू। सो ट्रेलिंग मतलब सुपर डॉट ट्रेलिंग इक्वल टू व्यू डॉट ट्रेलिंग, तो वो तो सही है, क्योंकि ट्रेलिंग मीन्स क्या होता है, राइट हैंड साइड। अगर आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करो एंड यू कैन सी, तो यू कैन सी हियर। सो ट्रेलिंग, इसका जो ट्रेलिंग है मतलब राइट हैंड साइड है किसका, व्यू का, विच इज इक्वल टू सॉरी ये सुपर व्यू का है, ये व्यू का है। तो व्यू मतलब ये वाला व्यू जो हमने ऐड किया, एंड ये जो बता रहा है सिर्फ ट्रेलिंग, दैट इज सुपर व्यू डॉट ट्रेलिंग, तो वो इक्वल है, दैट इज फाइन। नाउ व्हाट अबाउट लीडिंग, लीडिंग मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो व्यू का जो लीडिंग है एंड सुपर व्यू का जो लीडिंग है दोनों इक्वल किया है, दैट इज आल्सो फाइन, दैट इज व्हाट वी वांट। एंड बॉटम वी हैव आल्सो एडेड, बॉटम भी ऐड कर दिया है, बट स्टिल इट इज शोइंग द रेड लाइन। द रीजन फॉर रेड लाइन इज दैट, क्यों वो रेड लाइन दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये जो व्यू है उसको हमने टॉप वाली जो प्रॉपर्टी है, जो कंस्ट्रेंट है, वो नहीं दिया है, दैट्स व्हाई जो टॉप वाला है वो हमने नहीं दिया अभी तक, that's why. So what we can do, we can also give it here the constraint from the top side, but top side से हम लोग कैसे constraint देंगे? Problem is that we cannot give some constant constraint, मतलब 200 या 300 ऐसा नहीं दे सकते, because अगर स्क्रीन साइज चेंज होगी तो ये साइज के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। We need to give the dynamic one, so that's why. तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसकी हाइट और ये जो इमेज की हाइट है दोनों सेम कर देते हैं, एंड देन फॉर दैट कंस्ट्रेंट अगेन वी विल मॉडिफाई दैट कंस्ट्रेंट अगेन एंड उसको 30% कर देंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो फॉर नाउ व्हाट आई वांट टू मेक दिस व्यूज हाइट इक्वल टू दिस इमेज व्यू हाइट, वो इक्वल कर देते हैं पहले, एंड देन आई विल मेक इट 30%। चलो ये करके उसके बाद एंड करते दिस सेशन, एंड देन आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लैब और नेक्स्ट लेक्चर हाउ वी कैन मेक इट 30%। तो पहले मैं दिखा देता हूं कि ये व्यू है एंड आपका जो इमेज है, या फिर आप व्यू ही कंसिडर कर सकते हो, ये दो, ठीक है। आई एम सिलेक्टिंग बोथ, फॉर सिलेक्टिंग वी कैन यूज हियर कंट्रोल और कमांड बेसिकली। तो कमांड करके आप दो कंट्रोल को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि विंडोज में आप कंट्रोल यूज करते हो, यहाँ पे आपको कमांड यूज करना है, की, इट्स अ की, कमांड की दैट वी नीड टू प्रेस, एंड वी कैन सिलेक्ट द 2 component, and from here you just go here, and there is one more constraint which you can add, that is saying equal width and equal height. And what we want to make equal height,
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, राइट हैंड साइड कर दिया, बॉटम कर दिया, बट जो हाइट कंस्ट्रेन है और या फिर आप कह सकते हो टॉप वाला कंस्ट्रेन है वो अभी तक नहीं दिया था, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आई एम गिविंग द हाइट इक्वल टू व्हाट, जो व्यू की जो हाइट है और इस व्यू की हाइट है, दोनों की हाइट में सेम कर देता हूं। तो इससे होगा क्या, ये जो व्यू है वो पूरे की पूरी व्यू के अंदर आ जाएगा। एंड लेट्स ऐड दिस कंस्ट्रेंट। एंड यू कैन सी हियर कि उसकी जो ये जो नया व्यू हमने ऐड किया उसकी साइज भी हमने व्यू की साइज के हिसाब से कर दी, तो मतलब वो पूरा का पूरा ऊपर तक आ चुका है। एंड नाउ वी कैन एडिट some constraint and this make it 30% only. Okay, but we are not right now doing it. We will see it in a next lab or next lecture, because I think you have already lecture or lab, probably lecture. Now let me stop this recording and let me take your attendance. सो फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अलग लगेगा कि क्योंकि ये कंस्ट्रेंट वाला थोड़ा बहुत आपने देखा है, कहीं ना कहीं आपने कंस्ट्रेंट लेआउट में देखा होगा कि कंस्ट्रेंट देने होते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वो सभी जगह से हमें देने होते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गिविंग राइट नाउ हियर। अगर आप चाहोगे तो मैं यही एप्लीकेशन दोबारा बना के भी दिखा दूंगा, बट डोंट वरी। बट अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे तो okay, fine. So till now what we have done, we have added one image. वो इमेज को हमने पूरा का पूरा कंस्ट्रेंट दे दिया है, ठीक है। सो इट इज लुकिंग फाइन। एंड देन वी हैव एडेड वन मोर व्यू, उसका जो कलर है वो ब्लैक कर दिया, उसकी ऑपेसिटी कम कर दी। एंड वी हैव एडेड आल्सो सम कंस्ट्रेंट लेफ्ट राइट एंड बॉटम, एंड उसकी हाइट एंड जो व्यू की हाइट है दोनों को इक्वल कर दिया। दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। ओके, थैंक यू। नाउ यू मे कैन लीव।